السلام علیکم۔ تو ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے، کلاس 9 کی کتاب ہے جان پہچان، اس کا ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے، احسان کا بدلہ احسان۔ اس میں پہلے ہم سبق کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو میں نوٹس دوں گی جو اس میں کام دیا گیا ہے اب کرنے کے لیے۔ اس کے میں نے سارے نوٹس تیار کیے ہیں، وہ سارے آپ کو اس میں آگے دکھاؤں گی اس ویڈیو میں، تو اس کلاس کو آپ پورا اٹینڈ کیجیے۔ تو چلیے پہلے ہم اس سبق کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، احسان کا بدلہ احسان۔ کیونکہ ہم سبق نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پوری جو وہ کہانی ہے وہ نہیں سمجھ میں آئے گی، اور جو اس کے سوال جواب ہے پھر وہ ادھورا سا رہے گا۔ صرف جواب رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے اور دغا فریب بہت ہی کم تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا، اور جو جس کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ دن آج بھی ہوتا۔ بہرحال ان دنوں ایک شہر تھا، عادل آباد۔ اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا، دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر ایک عرب سے خریدا تھا۔ سب سے مہنگا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ عرب کا ہی گھوڑا ہوتا ہے، عربی گھوڑا بہت مہنگا ہوتا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 2 ایک وار تو خالی دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے، گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا، چنانچہ اس نے سائس کو حکم دیا، جو گھوڑے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ لیکن سائس نے اس حکم پر عمل نہ کیا، وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چل دیا، اور اس دکاندار نے بھی اس کی خبر نہ لی۔ اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندر۔ ان میں نیک اور ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتے اور خدا کو یاد کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ ایک بہت اونچا مکان تھا، اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا، کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا۔ شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا۔ یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی تھی۔ یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ چلاتا تھا۔ رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اسی کو چبانے لگا۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹا بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے، پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹا جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے۔ پنچوں نے پوچھا، یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ فلاں تاجر کا ہے، اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا، دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ پنچوں نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو یا جانور ہو؟
तुम आदमी हो, ये जानवर है, आदमी से अच्छा तो जानवर ही है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ कर। ये कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया, फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया। तो हमने सीखा इसमें कि हमें किसी का एहसान हमेशा याद रखना चाहिए, कभी उसको भूलना नहीं चाहिए। और ये सबक किसके ज़रिए हमें मिला है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस कहानी को लिखने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। तो आइए चलिए इसके सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये गौर करने की बात देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सबक के लिए। किसी के एहसान को भूलना नहीं चाहिए, यही हमें इस सबक में बताया जा रहा है कि किसी के एहसान को हमें भूलना नहीं चाहिए। एहसान भूलने वाले को बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सिखाई गई है इस सबक के ज़रिए। आइए अब इसके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, डाकुओं ने दुकानदार पर क्यों हमला किया? अब मैं आपको इसके नोट्स देती हूँ। तो मैं हूँ आपकी संजिदा मैम और आप देख रहे हैं मिक्स मज़ा लुत्फ़ चैनल। ये ख़ास उर्दू के लिए है, यहाँ पे आपकी उर्दू क्लासेस लगती है। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी इस चैनल का लिंक दे दीजिए, ताकि आपके साथी भी इससे फ़ायदा उठा सके जो उर्दू पढ़ते हैं। और उर्दू ज़बान के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको उर्दू ज़बान से प्यार है और चाहते हैं कि आपकी उर्दू ज़बान हर जगह पहुँचे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उर्दू के जो बच्चे जो वो जिन्हें सच में मतलब उर्दू के नोट्स चाहिए होते हैं, उन बच्चों को मदद मिल सके। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। बस यही मैसेज मुझे आपको देना था। आइए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल लेते हैं, डाकुओं ने दुकानदार पर हमला किया। तो जवाब है, लूट की गर्ज से डाकुओं ने दुकानदार पर हमला किया। सवाल नंबर 2, दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए? तो जवाब है, घोड़ा दुकानदार की डाकुओं से जान बचाकर उसे घर ले आया, इस तरह दुकानदार को घोड़े के दाम वसूल हुए। सवाल नंबर 3, साइज की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी? जवाब है, साइज ने घोड़े का दाना पानी कम करता गया और एक दिन उसने घोड़े को अस्तबल से निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफान में बाहर खड़ा रहा। सवाल नंबर 4, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था? जवाब है, जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता, तो वो उस घंटे को इस जोर से बजाता कि सारे शहर को खबर हो जाती और फिर फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ किया जाता। इसीलिए ऊंचे मकान में घंटा लटकाया गया था। सवाल नंबर 5, घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया? तो जवाब है, घोड़ा बेचारा हर चीज को भूख के मारे मुंह से चबाने लगता था। यहाँ पर से आएगा, मुंह से चबाने लगता था। जो ही घंटे की रस्सी उसके बदन से लगी, वो उसको चबाने लगा। रस्सी जो जरा खींची तो घंटा बजा। सवाल नंबर 6, ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया? जवाब है, अपनी गलती और घोड़े की बदतर हालत को देख ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। तो सवाल हमारे पूरे हो गए। इसके बाद है, नीचे लिखे हुए लफ्जों से जुमले बनाइए। अब हम जुमले के नोट्स पढ़ते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वफादार, कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है। बेचारा घोड़ा कई दिनों का भूखा प्यासा था। हकदार से उसका हक नहीं छीनना चाहिए। जालिम को उसका जुल्म, एक मिनट थोड़ी जल्दी में लिखती हूँ इसलिए कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जालिम को उसके जुल्म का बदला एक दिन ज़रूर मिलता है। फरियादी की फरियाद सुनकर फैसला करना चाहिए। एहसान, किसी पर एहसान करके न जताओ। कसूर, उसका कोई कसूर न होते हुए भी उसे सजा मिली। इबादत,
खुदा की इबादत करो। ताजिर, ताजिर तिजारत की गर्ज से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। इसके बाद आपको खाली जगह भरनी है। तो पहला है तुम आदमी हो, ये जानवर है, तो जानवर पहला होगा। सवाल दो, दूसरा पॉइंट है सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था, तो दूसरा नंबर गूंज। तीसरा है उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया, इसका होगा 3 घर। कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें जाती रही, आंखें 4। पांचवा है मंदिर और मस्जिद के बीच नेक्स्ट है नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद और जमा लिखिए। एहकाम, एहकाम जमा हुक्म वाहिद। ताजिर वाहिद, तज्जार जमा। हकूक जमा हक वाहिद। मकान वाहिद, मकानात जमा। शिकायत वाहिद, शिकायात जमा। एहसानात जमा, एहसान वाहिद। इसके बाद एक कवायद है, इसमें आपको फेल के बारे में समझाया गया है। फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल, 3 तरह के फेल होते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, उसको देखिए और समझिए कि फेल किसे कहते हैं और फेल कितने किस्म के होते हैं। तो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, ये फेल माजी है, फेल माजी है। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे, ये भी माजी है। मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल बाहर किया है, ये भी माजी है, माजी का जुमला है। ऊपर दिए गए जुमलों में जिन कामों के बारे में बताया जा रहा है वो पहले हो चुके हैं। ये सारे जिसमें भी था आते हैं, यानी उसका मतलब कि वो काम हो चुका है, यानी गुजरे हुए वक्त की बातें हैं। गुजरे हुए वक्त जमाने को माजी कहते हैं, जो भी पास्ट में काम होता है उसको माजी कहा जाता है। ये सारे काम पास्ट में हो चुका है। वो जा रहा था, नेक लोग बसते थे, निकाल बाहर किया, ठीक है। इसके बाद आपको करना है मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो आइए इसके भी हम देख लेते हैं। हक मारना, पहला मुहावरा है हक मारना। किसी का हक मारना बुरी बात है। चेहरा शर्म से सुर्ख होना, अपनी गलतियों की वजह से उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हिरन इतना वार खाली जाना, हिरन इतना तेज दौड़ा कि शिकारी का हर वार खाली गया। नेक्स्ट आपने करना है नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद लिखने हैं, यानी उसके अपोजिट लिखने हैं जो ये लफ्ज दे रखे हैं। अब वफादार देखें, वफादार गद्दार, नेक बद, जुल्म रहम, आराम तकलीफ, हक नाहक। तो ये आपका जो सबक है कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत थोड़ा ज़्यादा ही काम था इसमें, इस सबक में, बाकी में इतने काम नहीं होते हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है। लेकिन आपको जो नोट्स मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है। इससे आप लोग फ़ायदा उठाइए, इसको अपनी कॉपी में कीजिए और अपनी जो मैडम है आपकी स्कूल की उनसे चेक कराइए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूँ आपकी संजीदा मैम, आपकी उर्दू की मैम। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।